हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 4 অলৰেডি তিনিটা পাৰ্ট কৰা হ'ল আৰু এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নোটখিনি বনাই লৈছে বুলি মই আশা কৰোঁ। সো আজি আমাৰ पार्ट 4 और पार्ट 4 কৰাৰ আগত এবাৰ पार्ट 3 में हम लोग जो जो चीज़ किए हैं एक बार क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 3 আমি কি কৰা হৈছিল, আমাৰ কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি বনোৱা হ'ল। কেনেকৈ বনোৱা হৈছিল, কেবিনেট মিছন প্লেন 1946 ইণ্ডিয়াত আহিছিল। ইয়াৰ পিছত কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি বনোৱা হ'ল। কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ বেসিক্যালি দুটা ফাংচন আছিল। এটা হ'ল কনস্টিটিউশন বনোৱা, আমাৰ কান্ট্ৰিৰ সংবিধান বনোৱা এটা ফাংচন আছিল, আৰু এটা ফাংচন আছিল পাৰ্লামেণ্ট চলোৱা। সো কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্লামেণ্ট। যদি হোৱা কোশ্চেন যদি এক্সামত আহে যে হুইচ ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্লামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্লামেণ্ট কাক কোৱা হয়, এনসার হব আপনার কনস্টিটুয়েন্ট এছেম্বলি। এতিয়া বস্তু লিখার প্রয়োজন নেই, বিকজ এগুলো অলরেডি আমার লাস্ট ক্লাসত ডিসকাস হয়েছে। একটা মেজর কোশ্চেন ইয়ার পৰা আহে যে চারিটা অপশন দিয়া থাকিব, বাট ইয়ার পৰা কোন মেম্বার বা কোন ফ্রিডম ফাইটার ইন্ডিয়ান কনস্টিটুয়েন্ট এছেম্বলি মেম্বার কেতিয়াও নাছিল। তাতে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নাম মেনশন সদায় থাকে। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि महात्मा गांधी कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना ये वाला चीज, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ইয়াৰ পৰা যেটো কোশ্চেন নৰ্মালি দেখা যায় যে কনস্টিটুয়েন্ট এছেম্বলি প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্ট আছিল। তেখেতৰ আগত এজন সচিদানন্দ সিনহা বুলি এজনক টেম্পৰাৰী প্ৰেসিডেন্ট বনোৱা হৈছিল ফৰ 2 days, ঠিক আছে। লিখা আছে বাৰু সচিদানন্দ সিনহা বিফোর ইলেকশন পার্মানেন্টলি নহয়, টেম্পৰাৰী তেখেতক বনোৱা হৈছিল 2 দিনৰ কাৰণে, বিকজ তেখেতে সিনিয়ৰ মোস্ট মেম্বাৰ আছিল। বাট আফটাৰ সচিদানন্দ সিনহা 2 দিনৰ পিছত ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেখেতক বনাই দিয়া হ'ল পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট, ঠিক है। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আহে আপোনাৰ ফার্স্ট স্পিকাৰ অফ লোকসভা। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্পিকাৰ অফ লোকসভা, আনসার উইল বি জিভি মাভালাঙ্কার, ঠিক है। ভাইস প্রেসিডেন্টৰ নাম ইম্পৰ্টেন্ট, বহুত ৰেয়াৰ। আজিলৈকে মই স্টেট গভৰ্নমেন্ট এক্সামত কেতিয়াও ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ কনস্টিটুয়েন্ট এছেম্বলি খুদা মই পোৱা নাই। बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल में दोनों ही एक वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है। मैं आपको ईयर एग्जैक्टली अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन रिसर्च किया हूं उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आएगा तो 95% स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाएगा। क्लियर है? ओके। सो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट केटा, जे केতিয়া नेशनल फ्लैग केতিয়া एडॉप्ट करा হৈছিল, नेशनल एंथेम केতিয়া আমাৰ एक्सेप्ट करा হৈছিল বা এপ্ৰুভ কৰা হৈছিল, नेशनल सॉन्ग केতিয়া एप्रूव करा হৈছিল, है ना। এইবিলাক অলরেডি আমাৰ लास्ट क्लास में डिस्कस करा হৈছিল, ठीक है। मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन कर रहा हूं जाके आपको याद आ जाए कि लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था। देन कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन, याते যদি আপুনি চায় ইয়াতে চাব আপুনি कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन केতিয়া হৈছিল, মে 1949। सो कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन माने কি আছিল, আজি ইন্ডিয়া কিন্তু কমনৱেলথৰ নেশনৰ এটা গ্ৰুপ এটা আছে, এই গ্ৰুপৰ ইন্ডিয়া এজন মেম্বাৰ। কমনৱেলথ নেশন মানে কাক কোৱা হয়, যি নেশন কেইটাক এটা টাইমত ব্ৰিটিছে ৰুল কৰিছিল, এই কেইটা কান্ট্ৰিয়ে মিলি এটা গ্ৰুপ বনাইছে, নাম হ'ল কমনৱেলথৰ এটা গ্ৰুপ, আৰু তাতে কিন্তু ইন্ডিয়া এটা মেম্বাৰ হয়। क्लियर? ओके, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था लास्ट वीडियो, अगर नहीं देखे होंगे एक बार देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। ओके, ইয়াৰ পিছত এইবিলাক ডিসকাস কৰা হ'ল যে মানে কোন কি পোষ্টত আছিল, যেনেকৈ কনস্টিটুয়েন্ট এডভাইজাৰ কোন আছিল, বেনেগল নাৰসিং ৰাও, BN ৰাও। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन আছিল, SN मुखर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आहा क्वेश्चन। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो साइन किया था, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर हु साइंड, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था ड्राफ्ट, उसमें जो मेंबर साइन किए थे, टोटल कितना आदमी साइन किए थे, 284। और इनमें से आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कितना फीमेल पार्टिसिपेंट था, 15 फीमेल पार्टिसिपेंट था, ठीक है। 15 फीमेल पार्टिसिपेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर में से 15 फीमेल पार्टिसिपेंट, 15 फीमेल मेंबर उनको साइन किए थे। ओके, यार पिছত फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑलरेडी हो गया। लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 জানুৱাৰী 1950, ঠিক আছে। এবাৰ চাই ল'ব বাৰু হ্যান্ড রিটেন আমাৰ কনস্টিটিউশন যেতিয়া লিখা হৈছিল, इंग्लिशत কোনে লিখিছিল, প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা। হিন্দিত কোনে লিখিছিল, বসন্ত কৃষ্ণন বৈদ্য, ঠিক है। বাট এটোৰ ক্যালিগ্রাফি মানে ধুনিয়াকে হ্যান্ড রাইটিং মেইনটেইন কৰি হ্যান্ড রিটেন যেটো কনস্টিটিউশন এইটো হ'ল। বাট অবভিয়াসলি আমাৰ আজি দিনৰ কনস্টিটিউশন হ্যান্ড রিটেন নহয়, তাতে আপুনি যদি ভালকে যদি কনস্টিটিউশন পঢ়িব যায় তাতে বহুত আপুনি চেঞ্জেস পাব, বিকজ ইট উইল বি কম্পিউটাৰাইজ বস্তুখিনি চেঞ্জেস কৰা হয়। সো কোনে ফাইনালি ডেকোৰেট কৰিছিল, নন্দলাল বোস আৰু বিহাৰ ৰাম মনোহৰ।
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये नाम कभी मत भूलिएगा, सॉरी ये वाला नाम বিহর রাম মনোহর, এই পার্টিকুলার নামত দি কোশ্চেন কিন্তু বহুতবার আহিছিল যে কনস্টিটিউশন কোনে ডেকোরেট করেছে, আমার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হু ডেকোরেটেড ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, তাতে চাৰিটা অপশন থাকিব, এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিহর राम मनोहर नाम मनत रखा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आगे भी आएगा ये। नेक्स्ट आपका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबे हम जानो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमार सिंबल की, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिफेंट। और लगते और एक इंपॉर्टेंट इनफरमेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनर सिंबल हल एलिफेंट और आमार इंडियन रेलवेजर जो सिंबल एलिफेंटर निचिना, एटु भोपु बुली कोৱা হয়, बट एलिफेंटर निचिना এনেকে এটা এলিফেন্ট এনেকে একটা ল্যান্টার্ন লৈ থাকে, আৰু এটা আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিম্বল, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজৰ सिंबल है। क्लियर। सो लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो ये थोड़ा डेटा जो है ये थोड़ा देख लीजिएगा, जो कि मैं इसमें ज्यादा अभी डिटेल्स में नहीं बोलने जा रहा हूं, बिकॉज ये सब लास्ट पार्ट 3 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्योंकि पार्ट 3 और पार्ट 4 में थोड़ा गैप हो गया, तो इसलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटीज बनाया गया था, कमिटीज बनाया गया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिते बनवा হৈছিল, লগতে কেইটামান কমিটিজ बनवा হৈছিল, टोटल 8টা मेजर कमिटी, इसको नंबर याद रखिएगा, टोटल 8টা আপনার मेजर 8 मेजर कमिटीज बनवा হৈছিল और 13 माइनर कमिटीज बनवा হৈছিল। मेजर कमिटीज माने जे केटा कमिटी আপনার मेन বস্তুখিনি ডিল কৰিছিল, ইন্ডিয়া তেতিয়া বহুত মানে ভালনারেবল স্টেটত আছিল, জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পালে, ইফালে বহুত দাঙ্গা ঠঙ্গা এগুলো বহুত কিবা কিবি হৈ আছিল বাৰু, হয় না, ইন্ডিয়া পাকিস্তান সেপারেট কান্ট্রি হৈ গল, সো ইয়াৰ মাজত কেইটামান কমিটিজ বনোৱা হৈছে, যি কেইটা কমিটি ভালকে বস্তুখিনি মেনেজ কৰিব। সো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি মেনেজ কৰাৰ বাবে 8টা মেজৰ কমিটি বনোৱা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ বাহিৰত বেলেগ বস্তুখিনি মেনেজ কৰাৰ বাবে 13টা মাইনৰ কমিটি বনোৱা হৈছিল। এই হল আপোনাৰ 8টা মেজৰ কমিটি, कमिटीर नाम और कमिटीर लीडर कौन आसिल, हेड कौन आसिल, लगते दिया आसे। इसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक ये आपको बोला था, जब आपको कमिटी के आगे यूनियन दिखेगा, यूनियन नॉर्मली देखा जाता है, यूनियन जब रहता है आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू होता है। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, देखिए दोनों में जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। जो भी हो शॉर्टकट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसमें देख लीजिएगा। और हमार स्पेसिफिकली हमार অসমৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই পার্টিকুলার পয়েন্টটো বহুত ইম্পর্টেন্ট, The northeast frontier tribal areas and Assam excluded and partially excluded areas subcommittee कौन लीड करेছিল, गोपीनाथ बरदोले, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग का रिलेटेड है, असम से रिलेटेड बात है, तो गोपीनाथ बरदोले वाज मेड द मेन लीडर बा मेन चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी एक बार देख लीजिएगा, स्टीयरिंग कमिटी एग्जामत बहुत बार आइছিল, स्टीयरिंग कमिटी एग्जामत बहुत बार, एबार दुबार নহয় बहुत बार आइছে বাৰু। हु वाज द हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। सिमिलरली 13 माइनर कमिटीज, এই হল আপনার 13 মাইনার, আপনি কাউন্ট করে চাই 13টা পাবো আপনি, 13টা মাইনার কমিটিজ, ঠিক है, কমিটির নাম আর লগতে মেইন আপনার ই আৰু, ঠিক है। ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। यार पिছত আমি পালো সোর্সেস অফ, এটাও বহুত ডিসকাস হৈ গৈছিল, এটাও লাস্ট পার্টত ডিসকাস হৈছিল যে সোর্সেস অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন, আমার কনস্টিটিউশনৰ কোন পোর্শন কোন কান্ট্রিৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমাৰ কনস্টিটিউশন বনোৱাতে বাৰু মোটামুটি 2 বছৰ 11 মাহ 18 ডেজ 17 কেতিয়াবা 18 বুলি কোৱা হয়, ইমান দিন লাগিছিল আমাৰ কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ কাৰণে, মোটামুটি 3 বছৰ বুলি ক'ব পাৰে। সো আমাৰ কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ সময়ত বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কনটেক্সট লোৱা হৈছিল, বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট লোৱা হৈছিল, হয় না, যেনেকৈ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আমাৰ ইউএছৰ পৰা লোৱা হৈছিল, ইম্পিচমেন্ট অফ প্ৰেসিডেন্ট ইউএছৰ পৰা লোৱা হৈছিল, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আইৰিছ কনস্টিটিউশনৰ পৰা লোৱা হৈছিল। এনেকৈ আপোনাৰ এইটো কিন্তু এক্সামত বহুত এটা মানে ফেভৰিট কোশ্চেন বুলি ক'ব পাৰে, যে আপোনাক এনেকৈ দিয়া থাকিব যে অফিস অফ গভৰ্ণৰ, এই অফিস অফ গভৰ্ণৰৰ কি কাম, গভৰ্ণৰ কেতিয়া কেনেকৈ ৰেসপন্স কৰিব, কি তেখেতৰ ৰেসপন্সিবিলিটি, এই গোটেইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মেনশন কৰা আছে। বাট এই বস্তুখিনি ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ক'ৰ পৰা লৈছে বাৰু, কোন কান্ট্ৰিৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা লৈছে, आंसर होगा अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्लास आप लोग जो किए हैं उसमें मैं बोला था कि ये जो पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसको कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाइट पेपर भी बोला जाता है। मतलब इंडिया आजिर दिनों जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान, এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক 1935 পৰা বহুত বেছি বস্তু তাৰ পৰা কপি কৰা হৈছে, বহুত বেছি বস্তু তাৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু,
ठीक है। तो ये हम लोग का इंडियन, आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारा चीज आपको इधर से मिलेगा, ठीक है। सो এনেকে আপনি চাই লব যে কোন কোন পয়েন্ট, কোন কোন পার্টিকুলার পয়েন্টৰ পৰা, মানে কোন কোন বস্তু কোন কোন মানে কান্ট্রিৰ পৰা বা কোন লৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু সিমিলারলি अगर आप आगे जाएंगे तो देखेंगे যেনেকে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনৰ পৰা কি লোৱা হৈছে, এইকেইটা লোৱা হৈছে। যেনেকে सिंगल सिटीजनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल सिटीजनशिप माने मैं सिर्फ इंडियन हूं, मैं असम का रहने वाला हूं, तो मुझे असम मुझे अलग से सिटीजनशिप नहीं देगा। या আমি ইন্ডিয়াত যিকোনো ঠাইত যাওঁ, আমি যিকোনো স্টেটত আমি থাকো, যিকোনো ৰাজ্যত থাকো, এই ৰাজ্য বা এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী আমাক বেলেগকে সিটিজেনশিপ দিব নোৱাৰে, বা কোকৰাঝাৰ বা বিটিসি আমাক বেলেগকে সিটিজেনশিপ দিব নোৱাৰে। আমাৰ অকল এটাই सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। तो इसमें डबल सिटीजनशिप बोल के चीज नहीं है। लेकिन अगर आप यूएस में जाएंगे उधर आपको डबल सिटीजनशिप मिलेगा। वो देश का एक सिटीजनशिप होता है और उस जिस जगह पे वो रह रहा है, जिस प्रोविंस का रह रहा है, उसका एक अलग से सिटीजनशिप होता है, ठीक है। बट हमारे इंडिया অকল এটাই सिटीजनशिप। যেনেকে নেক্সট আমার ক্যাবিনেট সিস্টেম, আমার ক্যাবিনেট যেনেকে আমার বেলেগ বেলেগ ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, বেলেগ বেলেগ যে মিনিস্ট্রি বনোৱা হয়, এই প্ৰচেছটো বা এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, ব্ৰিটিছৰ পৰা লোৱা হৈছে, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा आराम से देख लीजिएगा। बाइकैमेरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बाइकैमेरलिज्म। बाइकैमेरलिज्म माने কি দুটা হাউস। আমার ইন্ডিয়াত যদি আপনি পার্লামেন্টত চাই তাতে দুটা হাউস আছে, রাজ্যসভা, লোকসভা, আপার হাউস, লোয়ার হাউস। সিমিলারলি আপনি যদি স্টেটত আহে, যদি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, বিধানসভা, বিধান পরিষদ, সো এইটো আপনার দুটা যে হাউস থাকে, এটো কয় বাইক্যামেরালিজম। এটো কোৰ পৰা লোৱা হৈছে? এটো লোৱা হৈছে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনৰ পৰা লোৱা হৈছে, ठीक है। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ये एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, सब उसमें डिटेल्स में बोला गया है। फंडामेंटल राइट्स এবাৰ দুবাৰ নহয়, হাজাৰ বাৰ চাগে एग्जामত আহিছে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস कहां से लिया गया है, ठीक है। মৌলিক আমার রাইট মানে আমি আমার সিটিজেনক আমার গভর্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত বা আমার সিটিজেনৰ কেইটামান রাইট আমাক দিয়া হৈছে, যেটো গভর্নমেন্টে যদি বিচাৰে এটো আপোনাক কিবা কাৰণত এটো কৰিব নোৱাৰে, মানে নালিফাই কৰিব নোৱাৰে, এক্সেপ্ট ইমার্জেন্সি। যে কেতিয়াবা ইন্ডিয়াত ইমার্জেন্সি লাগি গল, যেনেকে इंदिरा गांधी সময়ত इमरजेंसी लगा হৈছিল বাৰু। सो इमरजेंसी लगने से फंडामेंटल राइट खारिज हो जाता है। अदर देन दैट आपका जो राइट है, फंडामेंटल जो राइट होगा, वो भी राइट कुछ को ऐसा नहीं कि सर मैं आज जैसे जेनजी वाले बोल देंगे इंस्टाग्राम में उठ के कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, नहीं। उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि क्या क्या आपका फंडामेंटल राइट है। मैं अभी बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बोलूंगा, बिकॉज इसके चलते अलग से आपको क्लास ही लिया जाएगा। फंडामेंटल राइट एक बहुत डिटेल में टॉपिक है जिसको हम लोग करना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सा देश से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस से लिया गया है, क्लियर। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ইম্পিচমেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট, কিবা কাৰণত যদি প্রেসিডেন্টক যদি রিমুভ কৰিব লগা হয়, কিবা কাৰণত প্রেসিডেন্টক যদি রিমুভ কৰিব লগা হয় ফ্রম হিজ পোস্ট, ফ্রম হিজ অর হার পোস্ট, তো ইম্পিচ করা মানে রিমুভ করা। এই প্রসেসটো ফলো করা হয়েছে বাৰু यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पर। सिमिलरली रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, वो भी इधर से लिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आहक এইবিলাক সিমিলারলি কোন কান্ট্রিৰ পৰা কি লোৱা হৈছে গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। যেনেকৈ মই ক'লো নহয়, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, সাসপেনশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিউরিং ইমার্জেন্সি, ইমার্জেন্সির সময়ত ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাসপেন্ড করা হয়। এই টপিকখিনি ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? কনস্টিটিউशन অফ জার্মানি, জার্মানিৰ পৰা এই বস্তুটো লোৱা হৈছে, ठीक है। सो अगर आप किसी का पीडीएफ नोट देखेंगे तो पीडीएफ नोट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट अगर किसी रेडीमेड कहीं का पीडीएफ नोट अगर आप देखेंगे किसी भी कोचिंग सेंटर का, उसमें आपको क्या मिलेगा, इसका देखिएगा और बहुत कुछ है। आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये 2-4 चीज नहीं, और भी बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन सब हम लोग के एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है। तो मैं काट छाट के जो जो एग्जाम में आता है मैं उसको सिर्फ रखा हूं, इसको पढ़ लेंगे हो जाएगा, इससे बाहर नहीं चाहिए आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, और এটা কথা কৈ দিও যে ইয়াতে আপুনি যদি চায় বহুত কেইটা বেলেগ বেলেগ ওয়ার্ড আছে, যে ওয়ার্ডৰ মিনিং চাগে আপুনি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। ফার্স্ট 3টা ক্লাছত কেইটামান টপিক ডিসকাস কৰা হৈছে, বাট গোটেইখিনি আপুনি গম নাপায়। যেনেকৈ এজ ফৰ এক্সাম্পল মই কৈ আছো रेसिडुअरी पावर। ये रेसिडुअरी पावर माने की है, ठीक है। सो इसको अभी अगर बोलने जाएंगे वो बिना मतलब का देरी होगा, बिकॉज इसको चलते अलग से टॉपिक ही ये है, तो इसको अलग से डिस्कस ही होगा। तब मैं फिर से बोलूंगा कि ये रेसिडुअरी पावर ये होता है और ये चीज लिया गया है आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अभी मैं जस्ट इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारना होगा कि कौन सा देश से क्या क्या लिया गया है। अभी आज के दिन में बिना थोड़ा बहुत बिना समझे, बिकॉज आगे चल के इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, क्लियर। सिमिलरली फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, কোন কনস্টিটিউশন কি কি লোৱা হৈছে ইয়াতে পাবো। ইউএসএসআর মানে সোভিয়েত রাশিয়া, ঠিক আছে। এইবিলাক অলরেডি ডিসকাস কৰা হৈছিল, আমাৰ লাস্ট ক্লাসত গোটেইখিনি ডিসকাস কৰা হৈছিল।
ठीक है, ये वाला एग्जाम में आया था रिसेंटली, कौन एक एग्जाम में मैं देखा, शायद एसएससी जीडी में था शायद, ये रिसेंट एग्जाम में 4-5 महीना पहले कोई एग्जाम में ये आया था, ये वाला चीज कहा गया, ये वाला। রিপাব্লিক ডে সেলিব্রেশন শেষ কৰাৰ সময়ত যেটো সেরিমনি এটা কৰা হয়, এই সেরিমনি কি কোৱা হয়, বিটিং রিট্রিট সেরিমনি। ঠিক আছে, রিসেন্টলি আপোনালোকৰ স্যাৰ নবম স্যাৰ যেতিয়া গৈছিল দিল্লীত, যেতিয়া গৈছিল তেখেতসকলৰ এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত যেতিয়া সেরিমনিটো শেষ হ'ল, লাষ্টত এই সেরিমনিটো শেষ কৰে, তাতে এনাউন্স কৰি দিয়ে আৰু যে আমি हम लोग বিটিং রিট্রিট সেরিমনি স্টার্ট करेंगे। সো লাষ্ট রিপাব্লিক ডে সেলিব্রেশন শেষ কৰাৰ সময়তে যেটো প্ৰসেস ফলো কৰা হয় এটো কোৱা হয় বিটিং রিট্রিট সেরিমনি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পায় না নাপায়, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আৰু রিপাব্লিক ডে আমি দুটা সময়তে আমি ফ্ল্যাগ আমি ই কৰোঁ নহয়, আনফল কৰোঁ, যেনেকৈ মোৰ ষ্টেচনত কৰা হয় বা বেলেগ বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত কৰা হয় বা কোনোবাই স্কুলত কৰিব, দুটাৰ মাজত কিন্তু বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। চাব, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে স্বাধীনতা দিৱস মানে 15 অগষ্টত হোষ্ট কৰা হয়, হোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ফ্ল্যাগ ইন ৰেড ফোর্ট। আৰু ইয়াতে রিপাব্লিক ডেত কি কৰা হয়, ফ্ল্যাগ আনফল কৰা হয়। হোস্টিং কৰা আৰু আনফল কৰা কিন্তু পাৰ্থক্য আছে। आप हम लोग तो नॉर्मली वही करते, एक ही चीज कर देते, एक ही चीज नहीं है। होस्टिंग करना मतलब आपको फ्लैग को ऊपर में चढ़ाना होगा, और वो भी खाली पे, जूता वूता पहन के नहीं, आराम से। ठीक है, तो फ्लैग को चढ़ाना होगा, चढ़ाने के बाद उसको फ्लैग को अनफॉल करना होगा, ये पूरा होस्टिंग का प्रोसेस। अनफॉल करना मतलब फ्लैग ऊपर में ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ अनफॉल करना है, उसको सिर्फ खोलना है। अभी आप मुझे इसका लॉजिकल मीनिंग बता पाएंगे क्यों 15 अगस्त में फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, रिपब्लिक डे में अनफॉल क्यों किया जाता है, सिर्फ इसमें होस्टिंग क्यों नहीं किया जाता है? तो पता होना चाहिए। आपका देश का फ्लैग के बारे में बात हो रहा है और बचपन से देखते हुए आ रहे हैं आप लोग। बिकॉज 15 अगस्त 1947 আমি ऑलरेडी इंडिपेंडेंस पालू। इंडिपेंडेंस पावा मतलब हम लोग का तिरंगा ऑलरेडी ऊपर में पहुंच चुका है, हम लोग अभी आजाद है, कोई देश आके हम लोग को झुका नहीं पाएगा। तो ऑलरेडी उठाना है हम लोग को 15 अगस्त में, बाकी को दिखा के, पूरा दुनिया को दिखा के हम लोग को फ्लैग को ऊपर उठाना है। दिखा रहे हैं सबको कि हम लोग देखिए आज हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला है, फ्लैग को उठाएंगे, बाद में उसको आजाद करेंगे, खोल देंगे उसको। लेकिन ये 15 अगस्त 1947 में हुआ था। 26 জানুৱাৰী 1950 রিপাব্লিক ডে, মোটামুটি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ 3.5 বছৰ পিছত আমাৰ রিপাব্লিক ডে সেলিব্রেট হোৱা হৈছিল, বিকজ এই দিনত আমাৰ কনস্টিটিউশন আমি এডপ্ট কৰিছিলো, एक्सेप्ट কৰিছিলো। सो মোটামুটি 3.5 বছর পিছত, सो ऑलरेडी मेरा झंडा ऑलरेडी बाकी से ऊपर है, मुझे सिर्फ उसको अभी खोलना है, ताकि ये पूरा देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अभी लागू हो गया, तो उसको मुझे फिर से उठाना नहीं है उनको। ठीक है, ओके। सो यूके ब्रिटिशर अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इट অলপ বেলেগ, মানে অলপ এটা মানে आयरनिकल सार्कास्टिक भावे मैं बस्तुखिनि कब विचारू, जो देश इतना बाकी देशों के ऊपर इतना साल के लिए राज किया है, उनका अभी तक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया। अनरिटेन माने এনেকে নহয় যে তাতে কোনো কনস্টিটিউশন নাই, আনরিটেন কনস্টিটিউশন নিয়ম, এটা অলরেডি মই লাস্ট ক্লাসত কৈছিলো বাৰু। আনরিটেন আৰু রিটেন কনস্টিটিউশনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ইয়াতে লিখা আছে বাৰু, এবাৰ চাই ল'ব। মেইন পাৰ্থক্য হ'ল ৰিটেন কনস্টিটিউশন এটা কিতাপ, যি কিতাবত মই বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু লৈ পিনে निजोर कंट्री हिसाबे, मेरे कंट्री के लिए क्या क्या चीज अच्छा होगा, क्या क्या चीज कैसे क्या चेंजेस करना होगा, उस हिसाब से चेंजेस करने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हूं। मैं जर्मनी से ये चीज लिया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी से लेके मैं कॉपी पेस्ट मार दिया हूं। जर्मनी से वो वाला चीज लेके मैं देखा हूं कि मेरे देश के लिए ये वाला चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यार फिर चेंजेस करा फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुसे। So this is a written constitution, এটাই কিতাব, কনস্টিটিউশন এটাই, এই কোনো ভার্সন নাই, ভলিউম 1 ভলিউম 2 নাই, এটাই কিতাব। আৰু নিজৰ কান্ট্রি অনুযায়ী মই একটু চেঞ্জেস কৰা হৈছে, বা বেলেগ কান্ট্রিৰ পৰা ইনস্পায়ার হৈছে, এইটো না বেলেগ কান্ট্রিত আছে, আমাৰ কান্ট্রিতে এই রুলটো থাকা প্ৰয়োজন, বাট সেম বস্তু নহয়, অলপ চলপ সেম। আৰু আমাৰ কান্ট্রিৰ কাৰণে যেটো अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिशर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने हो, वो सबका उतना टाइम नहीं है। वो क्या किया, उधर से कुछ मिला रख दो, उधर से कुछ मिला रख दो, उधर से कुछ मिला रख दो, सबको जमा करके हो गया मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। निजे एको बस्तु एको लिखा नहीं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, এটা আমার লাস্ট ক্লাসৰ লাস্ট টপিক আছিল। ফেডারেলিজম মানে কি কৈছিলো মই, फेडरल गवर्नमेंट বা फेडरलिज्म माने की কৈছিলো, याद है? देखिए छोटा सा बोल देता, बिकॉज इसको अदरवाइज आपको आगे चलने में दिक्कत होगा। फेडरल गवर्नमेंट का, यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है जो मैं बोला वही खत्म है। मैं एक सरकार चला रहा हूं, अगर कल ये बात हो जाए
कहीं ना कहीं देश उस तरफ ही जा रहा है। कल अगर बात ये हो जाए कि दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ये बोलता है कि पूरा देश में ये लागू होगा और बाकी स्टेट केटार कोनो ताते कोनो आरो हिम्मत নাই যে ইয়ার এগেইনস্টত কিবা এটা কব আৰু ঠিক আছে ऊपर से बोल दिया मतलब हो गया खत्म इंप्लीमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट यूनिटरी मतलब वन एक ही हेड है बाकी सब अलग अलग हेड नहीं है वो जो बोलेंगे फाइनल यूनिटरी गवर्नमेंट बट इंडिया गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट आजिलते हुआ नहीं माने उधर से कुछ बोला जाएगा मेरे आसाम में आएंगे आसाम के ऊपर कोकराझार में आएंगे तो इसमें 3 टायर गवर्नमेंट है यूनियन स्टेट एंड स्टेट आको म्यूनिसिपलिटी लेवल माने डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बात होगा तो कुछ अगर आसाम के लिए चीफ मिनिस्टर जैसे उधर से कुछ बोला जाएगा नरेंद्र मोदी बोल दे कि ऐसा ऐसा करना है तो हिमंत बिश्व शर्मा जो सीएम है उनको ये चीज देखना पड़ेगा कि आसाम के लिए बिकॉज आसाम का जो हम लोग जो आसाम के जो नागरिक है जो सिटीजन्स है हम लोग का थिंकिंग हम लोग का कल्चर हम लोग का सोचने का चीज हरियाणा या दिल्ली से नहीं मैच होगा তেখেতসকলে অলপ বেশি এগ্রেসিভ হয় অলপ বেলেগ লেভেলৰ আৰু আমাৰ অলপ এটিটিউডটো বেলেগ ধৰণৰ সো সেম বস্তু ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব গলে বস্তুখিনি অলপ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিসকমিউনিকেশন হোৱাৰ বহুত হাই এটা চান্স থাকে সো সেম বস্তু বাট ইয়াতে আমি কেনেকৈ অলপ চেঞ্জেস কৰি আমাৰ ওপৰত ইমপ্লিমেন্ট কৰা যাব দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড বাই सीएम এটা सीएम सारे किबा এটা কৈ দিলে যে हां ये करना है नेक्स्ट कम टू अगर मैं अगर कोकराझार के बारे में बात करूं तब वो चीज जब कोकराझार में इंप्लीमेंट होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यार जो डीसी আছে यार जो আমার হাগ্রামা মহিলা আছে তেখেত গলে এইটো বস্তুখিনি চাব যে আমাৰ ইয়াতে ম্যাক্সিমাম পপুলেশন আমাৰ বড় মানুহ সো সেম বস্তু যদি মই তাতে এপ্লাই কৰি দিও বস্তুখিনি কিমান माने किमान यूजफुल हो वस्तुखिनी होबो पारे तो मुझे ऐसा बोला गया तो मैं इसको हल्का से ऐसा करके बोलूंगा ताकि इधर का लोग वो मान भी ले उन लोग का कुछ काम में भी आए और ऐसा नहीं कि उसका पूरा एकदम रफा दफा हो जाए पूरा चीज ठीक है तो बेसिकली इसमें 3 टायर गवर्नमेंट है तो ऊपर से एक सुझाव आने के बाद वो लेयर वाइज चीज नीचे जाएगा और जिस जगह के लिए जो चीज ठीक होगा उस हिसाब से उसको अप्लाई किया जाएगा दिस इज द फेडरल गवर्नमेंट इसमें अलग अलग आदमी का बात को सुना जाएगा यूनिटरी गवर्नमेंट माने नॉर्थ कोरिया ताते हीरो की बात कोले आरो हो गल आरो झमेला है वो जो बोलेंगे वही खत्म उसके आगे कोई बात नहीं होगा डिक्टेटरशिप ठीक है तो आजिर दिनत आमार इंडियात बाट कथा हल এই যে আমার কান্ট্রি কমপ্লিটলি ফেডারেল গভর্নমেন্ট নহয় বিকজ যদি আপনি চাই ইয়াতে চাব ইন্ডিয়া হ্যাজ আ ফেডারেশন উইথ আ ইউনিটারি বায়াস ফেডারেশন উইথ আ স্ট্রং সেন্টার মানে অলপ পার্সিয়ালিটি করা হচ্ছে সেন্টারের কারণে নর্মাল কথা কিবা এটা সাপোজ অবভিয়াসলি বিজেপি সরকার চলি আছে তো অবভিয়াসলি নরেন্দ্র মোদী কিবা এটা কোৱাৰ লগে লগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেতিয়াবা এইটো অবজেক্ট নকৰে স্বাভাৱিক কথা সেম পার্টি मान लेते हैं वेस्ट बेंगल কথা मैं एग्जांपल লৈ কৈ আছো वेस्ट बेंगल एग्जांपल এই কারণে লৈ আছে বিকজ তাতে স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি হল টিএমসি তৃণমূল কংগ্রেস আমার सेंटरত আছে बीजेपी কিবা এটা বস্তু डिसाइड करा হল যে ये चीज पूरा देश में लागू होगा अभी टीएमसी वो बोलेंगे कि नहीं डिस्कशन में आना पड़ेगा एक डायलॉग में आना पड़ेगा कि देखिए हम लोग के बंगाल के लोग ये पसंद करते ये उनके लिए सुविधा होगा ये हम लोग का ये है वो है तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे किबा कारण जो डिस्प्यूट है যদি কিবা কোনো ডিসপিউট হয় obviously the final decision will be taken by the center not by the state মানে আমার এটা বড় ফেডারেশন মানে ফেডারেল গভর্নমেন্ট নিশ্চয় ফেডারেল গভর্নমেন্ট তাতে আমার 3 টায়ার থাকিব ইউনিয়ন সেন্টার স্টেটস দেন লোকাল বডিজ বাট ইভেন্চুয়ালি যদি বায়াস যদি হয় অলপ বেশি ফেভার আপনার সেন্টারক করা হবে এই কারণে উইথ ইউনিটারি বায়াস ইউনিটারি মানে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের প্রতি অলপ বেশি বায়াস लास्ट यहाँ से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर बेसी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू स्टेट तो ऑल ऑफ बायस टुवर्ड्स द सेंटर क्लियर এইকেটা মনত ৰাখিব যে কোনে কি স্টেটমেন্ট দিছে আমাৰ ইন্ডিয়ান ফেডারেশনৰ ওপৰত এইকেটা ইম্পৰ্টেন্ট স্টেটমেন্ট এইকেটা ইম্পৰ্টেন্ট আপনি स्टेटमेंट बोली कब पारे जे अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है कि ये क्वासी फेडरल है क्वासी मतलब पार्शियली फेडरल पूरा पूरी ये प्योरली फेडरल नहीं है तो ये कौन बोला था केसी वेयर बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन चाहिए होगा स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन से काम चलना पड़ेगा कुने कोशिश मारो ग्रेनविल ऑस्टिन ठीक है और मॉरिस जोन्स बोले थे बार्गेनिंग फेडरलिज्म बार्गेनिंग मतलब ये हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में बार्गेनिंग चलता है सेंटारे स्टेटे बारो सेंटारो कब जे आमार याते नतुन रिक्रुटमेंट दिबो लागे आमार याते एनेके लागे आपनि आमाक 500 करोड़ आपना किबा करि दियक स्टेटे कब ना 500 करोड़ तो নহব आपने 200 करोड़ लो ना ठीक है ना आपका ना मेरा 400 करोड़ दीजिए तो बार्गेनिंग हमेशा चलता है जिसको बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म ठीक है सो ইয়ালৈকে আমার লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করা হয়েছিল अभी तक जो भी डिस्कस किया दैट वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास
ये अभी पार्ट 4 आपका शुरू होगा ইয়াৰ পৰা আমাৰ পাৰ্ট 4 আজি স্টাर्ट হ'ব ওকে সো কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট যে যেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশন বনোৱা হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে 26 নৱেম্বৰ 1949 দিস ওয়াজ দা ডেট যেতিয়া কনস্টিটিউশন আমাৰ পুৰাপুৰি বনোৱা হৈ গৈছিল বাট কনস্টিটিউশন কিন্তু এফেক্ট হোৱা নাই মানে ইন্ডিয়াৰ ওপৰত ইন্ডিয়াৰ সিটিজেন্সৰ ওপৰত এফেক্ট হোৱা নাছিল এফেক্ট হৈছিল কেতিয়া বাৰু 26 জানুৱাৰী 1950 সো এটো বহুত बहुत कॉमन क्वेश्चन निश्चय आपलोगे जाने जे when did Indian constitution when was Indian constitution adopted क्वेश्चन যদি আহে আপোনাৰ when was Indian constitution adopted आंसर হ'ব আপোনাৰ 26 নৱেম্বৰ 1949 যদি क्वेश्चन আহে when did Indian constitution come into force Indian constitution কেতিয়া পৰা ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল आंसर হ'ব 26 জানুৱাৰী 1950 আৰু এই কাৰণে 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে সেলিব্রেট কৰা হয় बात क्लियर है ओके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 26 नवेम्बर 1949 যেতিয়া कॉन्स्टिट्यूशन बनवा হৈছিল এই সময়ত আমাৰ आर्टिकल আছিল 395 आर्टिकल আছিল 22 पार्ट আছিল 8টা शेड्यूल আছিল মনত ৰাখিব বড় वेरी इंपॉर्टेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब हम लोग के पास 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल्स আছিল बट আজিৰ দিনত যদি আপুনি চাব যায় আজিৰ দিনত আপোনাৰ 470 आर्टिकल्स 395 আছিল 470 হৈ গৈছে 22 पार्ट्स আজিৰ দিনত 25 पार्ट এতিয়া আছিল বাৰু 8টা शेड्यूल আজিৰ দিনত 12টা शेड्यूल आर्टिकल पार्ट शेड्यूल क्या होता है हम लोग एक किताब का एनालॉजी लेके ऑलरेडी लास्ट क्लास के आगे क्लास में समझ चुके थे एक बार देख लीजिएगा इतना এই বস্তুটো বহুত ইম্পর্টেন্ট एग्जामर কাৰণে যে আমাৰ 22টা পার্ট আছিল 22টা পার্ট আছিল যেতিয়া কনস্টিটিউশন বনোৱা হৈছিল ইয়াৰ পৰা এটা পার্ট আগতে মাইনাস কৰা হল এটা পার্ট মাইনাস কৰি 21টা পার্ট কৰা হল কোন কোন পার্টটো মাইনাস কৰা হৈছিল আপোনাৰ পার্ট 7 has been deleted এই 22টা পার্টৰ পৰা এটা পার্ট ডিলিট কৰা হল पार्ट 7 की আছিল পিছত डिस्कस करा होगा बट याद जरूर रखिएगा कि कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट किया गया था आंसर विल बी पार्ट 7 व्हिच पार्ट वाज डिलीटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर विल बी पार्ट 7 पार्ट 7 डिलीट কৰাৰ পিছত কেটামান নতুন পার্ট ইনক্লুড কৰা হল কোনটো 4a 9a 9b and 14a 4a 9a 19b ठीक है ना 4 हाँ 4a 9a 9b और 14a ठीक है ओके यदि हम ऑब्वियसली देखिए एक चीज देखिए आगे चल के हम लोग को एक वर्ड मिलेगा अमेंडमेंट बोल के अमेंडमेंट आपको आगे चल के एक वर्ड मिलेगा अमेंडमेंट बोल के और अमेंडमेंट आपको याद भी रखना पड़ेगा कौन सा अमेंडमेंट से क्या हुआ था अमेंडमेंट माने चेंजेस करा आमार कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्टिंग बनवा হৈছিল ফার্দার ইয়ার পিছত তাতে বহুত বেশি চেঞ্জেস করা হৈছিল এই চেঞ্জেসক আমি অ্যামেন্ডমেন্ট বলি কও সো এই অ্যামেন্ডমেন্ট কোন অ্যামেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে কোন পার্ট ऐड করা হৈছিল এটো एग्जामर কাৰণে ইম্পর্টেন্ট कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा पार्ट को ऐड किया गया था एक बार लिख लीजिएगा पार्ट 4a এটো বাৰু ऐड করা হৈছিল আপোনাৰ 42 নম্বৰ অ্যামেন্ডমেন্ট 42nd অ্যামেন্ডমেন্টে দি আপোনাৰ 4a পার্ট ऐड করা হৈছিল 9a আপনার ऐड করা হয়েছিল 74th অ্যামেন্ডমেন্ট 74th অ্যামেন্ডমেন্টে দিয়ে আপনার 9a ऐड করা হয়েছিল 9b ऐड করা হয়েছিল 97th অ্যামেন্ডমেন্টে দিয়ে আপনার 9b পার্ট ऐड করা হয়েছিল আর 14a আকো এটো সেম ऐड করা হয়েছিল 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট 42nd अमेंडमेंट ये अमेंडमेंटर नंबर केटा मनोत रखा इंपॉर्टेंट कि कौन सा अमेंडमेंट से कौन सा पार्ट ऐड किया गया था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर इसको थोड़ा याद रखिएगा टोटल আছিল 22টার পর একটা পার্ট ডিলিট করা হল পার্ট 7 वाज डिलीटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यार পিছত 4টা পার্ট ऐड করা হল थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स एक बार लिख लीजिएगा जिসকলে पेड बेस्ट स्टूडेंट বা ইউটিউবত চাব তেখেতসকলৰ কাৰণে কৈ আছো ক্লাছত যিবিলাক কন্টেন্ট দিয়া আছে এইবিলাক তো আপোনালোকে এনে পিডিএফ পাই যাব বাৰু বাট এক্সট্ৰা বস্তুখিনি এবাৰ নোট কৰি ল'ব ইন দা ফর্ম অফ কোশ্চেনস অর বুলেট পয়েন্টস কিবা এটা কৰি আপনি এড কৰি ল'ব আৰু ঠিক আছে आगे बढ़े
आइए नेक्स्ट आओ। अभी देखिए, अभी एक नया चीज शुरू होगा, इसको थोड़ा समझने का बात। आमार इंडियन कन्स्टिट्यूशनर তিনিটা মেইন পিলার আছে, এই তিনিটা পিলারের উপর আমার কমপ্লিট কান্ট্রি ব্যালেন্সত আছে। এই তিনিটা পিলারের ভিতর যদি একটা পিলার যদি किसी कारण से अगर डगमगा जाता है, पूरा देश आपका पाकिस्तान बन जाएगा, या पूरा देश आपका नेपाल बनने में टाइम नहीं लगेगा, या आज के दिन में बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा। आज के दिन में अगर आप अपने पड़ोसी देश को थोड़ा देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, देन नेपाल, देन आपका बांग्लादेश, ये सब देश का हालत आज के दिन में किसी भी हालत में अच्छा तो है नहीं, ठीक है ना। पूरा पूरी उसमें क्राइसिस चल रहा है। तो ये हम लोग का देश का ये जो तीन मेन पिलर है, ये तीनटा पिलर मजबूत থাকা, बहुत स्ट्रंग থাকা बहुत প্রয়োজন। তিনটা পিলারক কি কোয়া হয়? এটা লেজিসলেটিভ। ফার্স্ট পিলার ইজ লেজিসলেটিভ, ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियल। बात क्लियर है? अभी देखिए, ইয়ার আগত পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট লিখা আছিল। এই পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট কি হয়, বিকজ আমি পিছত পাম যে দুটা ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট হ'ব পাৰে, পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট, প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। আমার ইন্ডিয়াত যদি আপনাক एक्चुअल हेड ऑफ द ऑफिस যদি क्वेश्चन आए हु इज द रियल हेड ऑफ द ऑफिस, आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब जो बोलेंगे वो देश में होगा। हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, रियल हेड ऑफ द कंट्री पीएम। आमार इंडिया एटू लिखि लब बारो, रियल हेड ऑफ द नेशन इन इंडिया, रियल हेड ऑफ द नेशन इक्वल टू पीएम, प्राइम मिनिस्टर। रियल हेड ऑफ द नेशन पीएम, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन। नॉमिनल हेड, नाम के वास्ते, उनको नाम के वास्ते हेड का एक उनको ये दिया गया है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। बट अगर आप देखेंगे आज के प्रेसिडेंट का कभी इंडिया में उतना ज्यादा रोल रखा ही नहीं है। मतलब हाँ, रोल रहेगा जब इमरजेंसी आएगा, जब कुछ होगा, कुछ आपका ऑफिशियल कुछ डेकोरम होगा, देन डेफिनेटली राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डेफिनेटली विल प्ले हिज और हर रोल। बट एक्चुअल हेड, আমার एक्चुअल कंट्री চলোৱাৰ যেটো দায়িত্ব, দ্যাট উইল বি টেকেন কেয়ার অফ বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। সো আমাৰ কান্ট্ৰি যেটো mode of government আমি পাও, that will be parliamentary form of government, whereas if you go in US, अमेरिका अपना जो गवर्नमेंट, that is presidential form of government, because उसमें डोनाल्ड ट्रम्प बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है यूएस का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं पता है, बिकॉज सामने नहीं आता है। प्रेसिडेंट आता है, उल्टा उल्टा वही बकता है, तो उसका नाम ही पता है। तो ताते प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट बहुत बेसी पावरफुल। और आप अगर थोड़ा दूर देश में जाके अगर पूछेंगे, यूएस में जाके किसी को, एनआरआई नहीं, जो लोग यूएस के जो सिटीजन होंगे उनको जाके पूछेंगे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, शायद नहीं बोल पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन है, कम से कम नाम नहीं बोल पाएंगे तो कम से कम आकार तो बता ही देंगे, बूढ़ा आदमी है, दाढ़ी वाड़ी है तो ऐसे बता ही देंगे, ठीक है कि नहीं। सो जी कंट्री जा इंपॉर्टेंस दे, बाकी कंट्री बाकी वर्ल्ड देखे तो किसी नहीं पाया। सो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगा और उसमें चलेगा आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएस में चलता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट অলপ কৈ দিও বাৰু যে আমার ইন্ডিয়া পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট এই কারণে কোয়া হয়। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পার্লামেন্ট? আমার ইন্ডিয়াত পার্লামেন্ট মানে আমি কি বুঝো? पार्लियामेंट माने क्या 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 समझते हैं हम लोग पार्लियामेंट मतलब? व्हाट इज पार्लियामेंट? हमारे इंडिया पार्लियामेंट माने की, हम लोग के पार्लियामेंट में क्या क्या चीज है? मेन 3 चीज से पार्लियामेंट बनता है। क्या क्या चीज है वो? लोकसभा, राज्यसभा और कौन सा सभा है? सभा नहीं है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 3 चीज से बनता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों से बनता है पार्लियामेंट। और कोई भी डिसीजन, किबा একটা डिसीजन যদি লোবো লগা থাকে, ये ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि हम लोग के देश में हो रहा है, अभी रिसेंटली 5-10 साल से हो रहा है, बट ये तरीका नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सुविधा कभी नहीं दिया था कि कोई भी मंत्री रात को सोए, सुबह उठे और बोल दे डिमोनेटाइजेशन हो गया। ये तो हम लोग का देश का ये फितरत पहले कभी था नहीं। मैं थोड़ा शायद बायस साउंड कर सकता हूं, बट एक्चुअली ये रूल तो है नहीं, मुझे जहां तक पता है। सो डेफिनेट तरीका से कुछ चीज को सामने लिया जाता है,
by thorough discussion. Discussion should be taken care of in the parliament. Lok Sabha kiba discussion hobo, Rajya Sabha discussion hobo, then majority will take part. Majority absolute majority hoy, simple majority hoy, to ki majority ki ami discuss korim baru. Yar pisot kiba eta nutun enactment, nutun eta law eta ana hoy. ये किसी का बाप का तो देश है नहीं कि कोई आके कुछ भी बोल देगा और मानना पड़ेगा। जी हो, तो যেহেতু ইয়াতে পার্লামেন্টৰ থ্ৰুত বস্তুখিনি ডিসিশন লোৱা হয়, পার্লামেন্ট ইজ দ্য মেইন হোল্ডস দ্য মেইন পাৱাৰ। একচুয়ালি পার্লামেন্ট হোল্ডস দ্য মেইন পাৱাৰ স্টেটমেন্টটো ভুল হ'ব, বিকজ পার্লামেন্টত আজিৰ দিনত যিসকলে মন্ত্ৰী গৈছে, যিসকলে আজিৰ দিনত এমপি আছে, এমএলএ আছে, তেখেতসকলে কিন্তু আমি সিলেক্ট কৰিছো, মানে উই দ্য সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া, तो वी होल्ड द मेन पावर। लेकिन ये समझने, अगर कोई समझ जाएगा ये चीज तो दिक्कदारी है। अगर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग आगे चल के देखेंगे आज के क्लास में, प्रियम्बल हमार जो फर्स्ट जो पेज कॉन्स्टिट्यूशनत ताते गोटेखिनि कहानी प्रियम्बলৰ পৰা स्टार्ट হয়, তাৰ পিছত আপুনি বেলেগ বেলেগ পেজত যাব, বেলেগ বেলেগ বস্তু পাই থাকিব বাৰু। बट पहला पेज आपको देश का बारे में, देश का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलता है, और उस पेज का पहला 2-3 अक्षर शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, মানে আমি, वी आर द किंग, মানে मिनिस्टर এইবিলাক तो ठीक है, हम लोग उसको चुनते हैं, तब जाके वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा घूस खाता है, इतना ज्यादा 2 नंबरी काम करता है, फिर भी वो जेल से घूमता है। आज के दिन में सोनम वांगचुक, वन ऑफ द हाईली एजुकेशनिस्ट एक्टिविस्ट, उनके जैसा शायद पढ़ा लिखा आदमी इंडिया में बहुत कम है, वो आज जेल का रोटी तोड़ रहा है। और उसी देश में गॉडमैन, क्या नाम था उनका, जो डेरा चलाता था, जो क्या सच्चा बहादुर, क्या बहादुर जो ये था, वो अभी हर दूसरा दिन पैरोल पे निकलता है। जिनके ऊपर 4-5 रेप केसेस है, मर्डर का केस है, वो अभी पैरोल पे घूमता रहता है। और बहुत इत्तेफाक का बात है, जब वो पैरोल में निकलता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, लेकिन 2-4 दिन बाद आपकी इलेक्शन होता है, तो शायद कुछ बात होगा। जो भी हो, ये दिस इज द प्लाइट ऑफ द कंट्री। जी हो, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकज पार्लियामेंट होल्ड्स द मेन पावर, पार्लियामेंट বস্তুখিনি ডিসিশন লোৱাৰ পিছত কৰা হয়। আৰু প্রেসিডেন্সিয়াল फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकज यूएस में, जैसे यूएस जैसा देश में जहां पे प्रेसिडेंट होल्ड्स द मेन पावर। ओके, এতিয়া আহক মেইন বস্তু, লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়াল। লেজিসলেটিভ ওয়ার্ডটো আহিল বাৰু আপোনাৰ টু লেজিসলেট, লেজিসলেটিভ ওয়ার্ডটো আহিছিল বাৰু আপোনাৰ টু লেজিসলেট। লেজিসলেট কথাৰ মানে হল টু মেক লজ, যোনে ল বনাব, আইন বনাব। আইন কোনে বনাব? আইন বনোৱাৰ রেসপন্সিবিলিটি বা পাওয়ার কার লগত আছে? মোর লগত তো নাই, আপনার লগত তো নাই। কোনে বনাব পাওয়ার? কোনে কার লগত এই पावर আছে? मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, सरकार के पास ये पावर दिया गया है। तो सरकार माने ऐसा नहीं कि वो उठ के कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि मैं बोला हूं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ताते आमी साम बारो पार्लियामेंटत बेलेग बेलेग सेशन হয়, জিরো সেশন, আওয়ার সেশন, কোশ্চেন আওয়ার, এনেকে বেলেগ বেলেগ সেশনস করা হয়। তাতে কিবা এটা টপিক লৈ ডিসকাশন হ'ব। আর টপিক বি এসা নেই কি বস্তুটো এনেকে নহয় বাৰু, আমি যেনেকে আমাক যেনেকে দেখুৱা হয় যে পার্লামেন্টত বহুত কাজিয়া চলি আছে বাৰু, কংগ্রেসে কিবা কিবি কৰিলে, বিজেপিয়ে কিবা কিবি কৰিলে, একচুয়ালি দ্য ফ্যাক্ট ইজ নট লাইক দ্যাট। একচুয়ালি কি হয়, তাতে কোশ্চেন আওয়ার বলে একটা সেশন হয়, তাতে প্রিস্ক্রিপ্টেড কোশ্চেन ऑलरेडी दिया থাকে যে ये क्वेश्चन लेके हम लोग बात करेंगे, आप अपने घर के पानी में, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा, वो बात नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्री लिस्टेड और এটার উপর ডিসকাশন করা হয়। দেন ওয়ান্স ইট ইজ ডিসাইডেড বাই বোথ দ্য পার্টিজ, রুলিং এন্ড অপোজিশন বোথ, ইয়ার পিছত আমার কান্ট্রি এটো লাগু করা হয়। সো বেসিক্যালি মিনিস্টার্স, দে হোল্ড দ্য মেইন পাওয়ার টু মেক লজ। সো লেজিসলেটিভ ফার্স্ট পিলার, আমার কান্ট্রির তিনটা পিলারের ভিতর ফার্স্ট পিলার ইজ দোজ হু ক্যান মেক লজ, যাক আইন বনোয়ার অথরিটি দেওয়া হয়েছে, দে আর দ্য মানে দে আর দ্য ফার্স্ট পিলার অফ দ্য কান্ট্রি। ক্লিয়ার? নেক্সট হল এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউট করা। এটা ল খালি বনালে নহব। সাপোজ মই জাস্ট এক্সাম্পল দি বুজাই আছো আপোনালোকক, যে মোক কেইদিন আগত মই এটা 1000 টকা মই ফাইন দিলো এই হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে। এতিয়া কথা হল যে হেলমেট নিপিন্ধিলে আপোনাৰ 1000 টকা ফাইন, লটো আপুনি তো বনোৱা নাই, মই বনোৱা নাই। এটা আপুনি ভাবক, প্রথম কথা হল হেলমেট নিপিন্ধাটো বহুত বেয়া কথা, बहुत बेया কথা, एक्सीडेंट हो पारे, लॉ बना दिले। मान लेते हैं ये लॉ सरकार बना दिया, अगर हेलमेट मतलब बिना पहने कोई अगर रास्ता में जाएगा, आपको 50,000 फाइन देना पड़ेगा। आप मानेंगे फाइन को? ये क्या बात हुआ? मेरा मुंडी मेरा जाएगा तो मैं मरूंगा, आप मेरे से 50,000 फाइन लेंगे, कैसा बात हुआ? सो जी लॉ बनवा होबो, दैट विल बी थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू डिस्कशन। এটা যে ল বনোৱা হ'ব, ল এক্সিকিউট কৰাৰ কাৰণে, এক্সিকিউট কোনে কৰিব? ট্ৰাফিক পুলিচ। ট্ৰাফিক পুলিচে ধৰিব, এই ৰুকো ৰুকো এনেকে ই বজাব আৰু 1000 টকা ই লাগে কাৰো এতিয়া।
সো এক্সিকিউট কৰাৰ কাৰণে মানুহ লাগিব, খালি ল ওপৰৰ পৰা বনোৱা হ'ল, এক্সিকিউট কৰাৰ কাৰণে যেনেকৈ ডিচি, আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ডিচি, তেখেতৰ আণ্ডাৰত বহুত পাৱাৰ আছে। চ' তেখেতে বহুত যিটো ওপৰৰ পৰা যিটো ৰুল আহিব যে কোকৰাঝাৰ में आपको ये चीज अभी आपको लागू करना है, लॉज, दिस आर द लॉज। सो কোনে এক্সিকিউট কৰিব? ডিচি এক্সিকিউট কৰিব, ট্ৰাফিক পুলিচে এক্সিকিউট কৰিব, নৰ্মেল পুলিচে এক্সিকিউট কৰিব, হয়নে? মই এজন এক্সিকিউটিভ পাৰ, কেনেকে सपोज रेलवे बोर्ड किबा এটা नियम बनाई दिले যে ऐसा है ना, ट्रेन को अभी से ऐसे ही चलाना होगा, पैसेंजर को ऐसे ही ट्रीट करना होगा, सो आई एम बाउंड टू एग्जीक्यूट द लॉ। सो मैं एज ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट कम जुडिशियल। अभी जुडिशियल माने कोर्ट, हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिस आर द पार्ट ऑफ द जुडिशियल। এতিয়া যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন আপুনি পাম, কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া ভালকৈ আমি কোনোবা ডিছকাছ কৰিব, অভিয়াছলি মই যেনে কনষ্টিটিউশ্যন কেতিয়াও পঢ়া নাই, যিসকলে ল মানে ল পঢ়ে আৰু BLLB পঢ়ে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ কনষ্টিটিউশ্যন পঢ়ে বাৰু। বাট তাতে এটা বস্তু মই নিশ্চয়কৈ জানো, যিটো লিখা আছে যে জুডিচিয়েল মানে জুডিচিয়াৰী মানে যিসকলে মানে फैसला কৰিব আৰু যিসকলে ডিসিশন ল'ব, दैट शुड बी इम्पार्शियल। वो कभी किसी के हित में नहीं देखेगा, गरीब है कि पैसा वाला है, दलित है कि ब्राह्मण है, हिंदू है कि मुस्लिम है, ये सब देखना उसका काम नहीं है। क्या मिनिस्टर का भांजा है या कोई नॉर्मल घर का है, वो सब देखने का काम जुडिशियरी का है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज, एडवोकेट, दिस शुड, हाँ ऑब्वियसली अपना जो क्राइम करेगा उनका भी फेवर में एक लॉयर रहेगा, इनके फेवर में एक लॉयर रहेगा, बट द समवन जो उस सीट में बैठा है डिसीजन लेने के लिए, ही और शी शुड बी अनबायस्ड। सो या तो जुडिशियरी माने दोज हु कैन मेक दोज हु कैन इवैल्यूएट लॉज, তেখেতসকলে ল বনাব, মেক্স লজ, তেখেতসকলে ক্যারিজ আউট লজ মানে এক্সিকিউট কৰিব ল, আৰু তেখেতসকলে লটো ইভালুৱেট কৰিব। যে সাপোজ এনেকে হৈ গ'ল বাৰু যে মই বাৰু উইদাউট হেলমেট ওলালো, মোক ফাইন হৈ গ'ল, আৰু মোৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহি গ'ল যে আপোনাৰ ফাইন হৈছে, আপোনাক এতিয়া বেছি নহয় বাৰু 50,000 টকা দিব লাগিব। চ' মোক কাক ক'ম? ঘৰত গৈ তো কান্দি লাভ নাই। চ' মোক তো কোনোবাই तो रजिस्टर कर बोला, मैं मेरा ये हित है, मेरा ये लॉजिक है, मैं इस लॉजिक से बोलना चाह रहा हूँ कि 50,000 बहुत ज्यादा है, 1,000 में दे पाऊंगा। सो मैं किसको बोलूंगा? झगड़ा करके तो फायदा है नहीं। तो मैं जिसके दरवाजा खटखटाऊंगा, जिसके पास जाके मैं ये डिस्कस करूंगा, दैट इज द लॉ, वो है जुडिशियरी। उनके पास मैं भी जाऊंगा और मेरे अगेंस्ट में कौन रहेगा? पूरा सरकार रहेगा, पूरा सरकार रहेगा। जो सरकार से उनका एक लॉयर रहेगा जो बोलेगा नहीं इस कारण से हम लोग 50,000 रखे हैं, और मैं बोलूंगा मैं इस कारण से मैं 1,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मेरा ईयरली इनकम मेरा इतना है, मेरे घर में मम्मी पापा ऐसा है, मेरा पैसा नहीं दे पाऊंगा, BPL से बिलोंग करता हूं, मैं पैसा कहां से दूंगा? सो दैट विल बी ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ इन द कोर्ट, एंड द जो मेन जज रहेगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। सो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। नेक्स्ट आओ, ऑब्वियसली दीज आर द जस्ट एक हल्का हल्का टच ऊपर बस्तुखिनि कोआ होइसे, बिकज इन डिटेल आमी सेपारेट के बस्तु डिस्कस करिम, जेनेके फंडामेंटल राइट्स ले सेपारेट के डिस्कस करिम। बट याते इंपोर्टेंट कथा हल फंडामेंटल राइट्स माने की, मौलिक अधिकार बोली कोआ है। फंडामेंटल राइट्स माने की, द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कॉन्साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वस्तु बा कोन पार्ट ऑफ कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कोआ है। कॉन्साइंस माने की, कॉन्साइंस माने कौन सा साइंस है ये जो कि कॉन्साइंस है? कॉन्साइंस माने विवेक बोध, अच्छा खराब का ज्ञान होना, रैशनल होना, इरेशनल नहीं, रैशनल होना, लॉजिक दे पाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्साइंस। सो कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोआ है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोआ है। The section of the fundamental rights has been often referred to as conscience of the Indian Constitution. Next, fundamental rights therefore protect, देखिए किसको प्रोटेक्ट करता है? सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है against the arbitrary and absolute exercise of power by the state। किबा कारणत स्टेट माने की, what स्टेट माने अपने की बुझे? स्टेट या तो स्टेट माने की राज्य ना, इधर स्टेट मतलब आपको हम लोग जो नॉर्मल टर्म में स्टेट समझते हैं, दिस इज नॉट दैट स्टेट। ए स्टेट माने कंट्री, ए स्टेट माने गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट या कंट्री अगर आपके मौलिक अधिकार को लेके कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपको मौलिक अधिकार को नहीं ये करने दे रहा है, तो
তো आपको बचाएगा कौन फंडामेंटल राइट बिकज फंडामेंटल राइट जेते আমি লিস্ট আমি পঢ়িম তাতে আমি পাম যে আমাৰ ইন্ডিয়ান সিটিজেনক কেইটামান ফান্ডামেন্টাল রাইটস দিয়া হৈছে যি কেইটা রাইট আমি যি কোনো সময়ত আমি প্রটেক্ট কৰিব পাৰো কোনো সরকারে বা কোনো কান্ট্রি এটা আমাক বাধা দিব নোৱাৰে ठीक है दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स ओके नेक्स्ट कम सेकुलरिज्म जो अभी लास्ट 4-5 साल से बहुत हॉट टॉपिक है इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज्यादातर सेकुलरिज्म सेकुलर होना खराब है ना मुस्लिम को भगा देना चाहिए पाकिस्तान चला जाना चाहिए बांग्लादेश चला जाना चाहिए हिंदू राष्ट्र होना पड़ेगा दिक्कत वही हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे सेकुलरिज्म है ना और मैं और आप इंस्टाग्राम में ये सब ज्यादा झमेला करने से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलरिज्म माने जी कांट्री धर्म কোনো ধর্মক ফেভার নকরে ইম্পার্শিয়াল টু এনি রিলিজিয়ন হিন্দু খ্রিস্টান মুসলিম শিখ যে কোনো ধর্মের মানুহক কনস্টিটিউশনাল ভাবে সবে সমান दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म ठीक है आपको धर्म देख के आपको जज नहीं किया जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया ये चीज ठीक है ओके नेक्स्ट आहक टू टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म দুই ধরনের সেকুলারিজম হয় পজিটিভ সেকুলারিজম নেগেটিভ সেকুলারিজম বস্তুখিনি অলপ বুঝার ট্রাই কৰক ইন্ডিয়া ইজ এ কান্ট্রি ওয়ার পজিটিভ সেকুলারিজম ইজ फॉलोड यूएस इज ए कंट्री वेयर नेगेटिव सेकुलरिज्म इज फॉलोड थोड़ा चीज को समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एटू কোয়া হৈছে যে ইন্ডিয়া সেকুলার কান্ট্রি ইন্ডিয়া ইজ এ সেকুলার কান্ট্রি এজ পার দ্য কনস্টিটিউশন ইয়াত যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহ ইজিলি ইয়াতে গোটেইখিনি ৰাইটস পাব জুডিশিয়ারি তাতে কোনো ডিফারেন্সিয়েট নকৰে ফার্স্ট কথা नेक्स्ट আকৌ सेकुलरिज्म দুটা पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कोआ होइसे पॉजिटिव क्यों कोआ होइसे बिकॉज इंडिया ऐसा एक देश है जहां पे ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट का सब्सिडी आता है और हर साल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट পৰা আহে स्टेट गवर्नमेंट পৰা আহে তো যদি আপনি কোনো তীর্থ যাত্রা করে যদি কিবা আপনি যদি হরিদ্বার বৃন্দাবন যদি যায় বা পুরী কাশী যদি যায় আপনাক সাবসিডাইজ রেটত আপনার সরকারে আপনাক টিকিট बनाई दिए আপনাক বেলেগ বেলেগ ডিসকাউন্ট দিয়ে যাকে आप तीर्थ यात्रा करके आइए और दिस इज नॉट ओनली फॉर हिंदू दिस इज फॉर मुस्लिम ऑल्सो कोनोबा हज करार कारण कोनोबा जाए यदि ताके दलक किन्तु बहुतखिनि सब्सिडी दिया है ठीक है तो हम लोग के देश में पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्यों बोला गया है बिकॉज अपने धर्म के रास्ते में चलते हुए जो जो चीज आपको करना पड़ेगा उसके लिए सरकार या देश आपको अपने हिसाब से फेवर करता है इसलिए पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा है नेगेटिव सेकुलरिज्म यूएस ऑफ क्यों कहा है बिकॉज उनके देश में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपका धर्म लेके आप खुश रहिए मुझे वो सब लेके कुछ ये नहीं करना है आपको मैं वो 10 रुपया देके आपको नहीं बोलूंगा आप काशी घूम के आइए ठीक है यूएस में काशी है भी नहीं हालांकि तो तेखिए वो 10 टका दिए अपना सपोर्ट नकरे सो दिस इज नेगेटिव सेकुलरिज्म क्लियर ओके द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम इट ऑलरेडी बोल चुके कि अलग अलग सोर्स से कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है नेक्स्ट आहक फ्रेंड्स आमार আজি পার্টটো ইয়াতে শেষ হ'ল আপোনালোকে বাকি আমি এইটো নেক্সট পার্টত আকৌ কন্টিনিউ কৰিম আপোনালোকে যিমানখিনি পঢ়িলে মই সদায় কৈ থাকোঁ বাৰু সদায় কৈ থাকোঁ যে আপুনি যিমানখিনি পঢ়িলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে এইটো নোট ডাউন কৰক নিজৰ ভাষাত বস্তুখিনি লিখিব নিজৰ ভাষা মানে এইটো অসমীয়া হ'ব পাৰে বড়ো হ'ব পাৰে হিন্দী হ'ব পাৰে ইংলিছ হ'ব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোকে সুবিধা পায় নিজৰ ভাষাত বস্তুখিনি লিখি ৰাখক বিকজ মোৰ ইয়াতে নোটত আপুনি 80% 90% লৈকে পাব বাট এনেকৈ হ'ব পাৰে 10% মই এক্সট্ৰাকৈ আপোনাক কৈ আছোঁ এক্সট্ৰা কিবা ইনফৰমেশ্যন দি আছোঁ ইয়াৰ বাহিৰত মোৰ বস্তুখিনি যেতিয়া আপুনি পিডিএফ হিচাপে পাব এইটো তাতে যে গো থ্ৰু কৰিব নহয় এইটো মুখস্থ এনেকৈ নহয় যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজৰ ভাষাত নিজৰ হাতেদি বস্তুখিনি নিলিখিব বস্তুখিনি এনেকৈ মনত নাথাকে সো এবাৰ ট্ৰাই কৰক নিজে ভালকৈ বস্তুখিনি নোট কৰাৰ বাবে আৰু বাকীখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ